افسوس ہے اس قوم پر جو صرف تابوت اور جنازوں کے پیچھے قبرستان میں نالا و فغاں کے لیے لب کھولتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو نیند میں تو کسی قسم کی پابندی یا دباؤ کا تصور نہیں کر سکتی لیکن بیداری میں اسے خوشی سے گلے لگا لیتی ہے۔ اگر تم انگور کا رس نکالتے وقت ناراض ہوگے تو تمہاری ناراضی شراب میں زہر گھول دے گی۔ اگر تم خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو معموہے کو حل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم کسی غلام کو سوتا ہوا دیکھو تو اسے فوراً جگہ دو اور آزادی کا مفہوم اس کے ذہن نشین کراؤ۔ اگر تم کسی مطلق العنان حکمران کو معزول کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کا یقین کرو کہ تم نے خود اپنے دل میں اس کے لیے جو تخت بنایا ہے وہ گرا دیا گیا کہ نہیں۔ اگر تم محبت کے ساتھ نہیں بلکہ ناپسندیدگی کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا کام چھوڑ دو اور مندر کے دروازے پر بیٹھ کر ان لوگوں سے خیرات لو جو مسرت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر تو موت کی روح کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو حیات کے جسم کو دل کی آنکھ سے دیکھ۔ اگر کسی خوف سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس خوف کا گھر تمہارا اپنا دل ہے نہ کہ اس شے میں جس سے تم خوف زدہ ہو۔ امید زندگی کا سہارا ہے۔ ہر خزاں کے سینے میں بہار کا دل دھڑکتا ہے اور ہر شب کے سینے میں مسکراتی ہوئی صبح چھپی بیٹھی ہے۔ انسان کا عزم فکر کی سطح پر تیرتے ہوئے سائے کی طرح ہے۔ انسان کی آنکھ خوردبین کی مانند ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ دنیا بہت ہی عظیم نظر آتی ہے۔ انسان کے لیے مظلوم ہونا ظالم ہونے سے بہتر ہے۔ انسانی اقدار روحانی اقدار کا پرتو ہونی چاہیے۔ روحانی ارتقاء کے بغیر انسانی معاشرے میں اخلاقی قدروں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مہربانی جو اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھنا چاہتی ہے پتھر بن جاتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بات تو سمندر کی طرح کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی گندے بدبودار جوہر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پوجی ہوتے ہیں۔ ایک مغنی فضا میں پھیلے ہوئے تال اور سر اپنے نغمے میں ڈال سکتا ہے لیکن تمہیں وہ سماعت نہیں دے سکتا جس کی مدد سے اس نے ان سروں کو مقید کیا ہے اور نہ وہ اوز جس کی گونج اس کے نغمے میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر سوچے باتیں کرتے ہیں اور ایسی سچی باتوں کا اظہار کر دیتے ہیں جو وہ خود نہیں سمجھتے۔ بعض ناموں کے معنی ہمارے فہم و ادراک سے زیادہ عمیق ہوتے ہیں اور ان کی رمزیت ہماری سوچ سے کہیں پیچیدہ ہوتی ہے۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کر کے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رین رہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لہروں کی دندناہٹ کی طرح باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی دلدل کی طرح پایاب اور جامد و ساکن ہوتی ہے۔ بیج ڈالنے والا کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو لیکن خزاں میں وہ کھیت ہرا بھرا نہیں کر سکتا۔
बेकार रहने के मानी है मौसमों से अजनबी बन जाना और जिंदगी के इस जुलूस से अलग हट जाना जो शान व शौकत के साथ रवा दवा है। तरक्की सिर्फ माजी की इस्लाह का नाम ही नहीं बल्कि ये बतदरीज मुस्तकबिल की तरफ पेश कदमी का नाम भी है। तुम ऐसे शख्स को क्या सजा दोगे जो गोश्त पोस्त को तो कत्ल करता है लेकिन जिसकी रूह खुद कत्ल हो जाती है। तमाम अशिया का आगाज मुबहम और बेशक्ल होता है लेकिन उनका अंजाम नहीं। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी जरूरतों का जवाब है, वो तुम्हारे खेत की तरह है जिसमें तुम मोहब्बत का बीज बोते हो और शुक्रगुजारी की फसल उगाते हो। तुम्हारा गम आ खुशी जिस कदर ज्यादा और अजीम होगी तुम्हारी नजर में दुनिया इतनी ही बेवकात और हकीर होगी। तुम्हारा घर चाहे कितना ही परशको और शानदार हो इसमें तुम्हारे राजों को जगह नहीं मिल सकती और ना ही तुम्हारी तमन्नाओं को पनाह। तुम्हारी खुशी तुम्हारा बेनकाब गम है। तुम्हारे कपड़े तुम्हारी खूबसूरती को बहुत कुछ छुपा लेते हैं लेकिन वो बदसूरती को नहीं छुपाते। तन्हाई की जिंदगी बसर करने के मानी ये हैं कि जिस्म और रूह को आज़ार पहुंचाया जाए और रुझानात को मुर्दा कर दिया जाए। जाने वो वक्त कब आएगा जब फितरत हमारी मुअल्लिमा, इंसानियत हमारी किताब और जिंदगी हमारा मकतब होगी। जब एक भी पत्ती सूख कर पीली होती है तो पूरे दरख्त को इसका खामोश गम होता है। जब तुम अपनी अमलाक की बख्शिश करते हो तब तो तुम कुछ भी नहीं देते। जब तुम खुद अपनी जात की बख्शिश करते हो वही असल बख्शिश है। जब तुम अपने गम किसी हमसाये को सुनाते हो तो गोया दिल का एक लख्त उसके हवाले कर देते हो। जब तुम में से एक गिर पड़ता है तो वो उनके लिए गिरता है जो उसके पीछे हैं, वो रास्ता रोकने वाले पत्थरों की दूसरों को खबर देता है। जब तुम्हारा कुनवा लबरेज है और फिर भी तुमको प्यास का डर है तो क्या उसके मानी ये नहीं कि तुम्हारी प्यास नहीं बुझाई जा सकती। जब साया मिटकर गायब हो जाता है तब बाकी रहने वाली रोशनी किसी दूसरी रोशनी का साया बन जाती है। जुदाई सिर्फ इन लोगों के लिए हुज़्न व मलाल का बाइस बनती है जो हर शय को हवास खमसा के जरिए से महसूस करते हैं। जिदोजहद का इस्तिराब फरार के सुकून से बेहतर है। जिस्म का कातिल दार का मुस्तहिक है लेकिन रूह का कातिल किसी को दिखाई नहीं देता। जिनके कारनामे ज़वाल और फना से मावरा हैं जमीन उन्हें कोई गजंद नहीं पहुंचा सकती। तूफान गुलाब की पत्तियों को तो जरूर बखेर सकता है लेकिन इसके बीज को फना नहीं कर सकता। जो शख्स किसी खताकार को ताजियाने लगाना चाहता है वो इस शख्स की रूह की भी जांच करे जिसे गजंद पहुंचा है। जो कोई मुसीबत व बेचारगी में अपने अजीजों का साथ देता है वो एक ऐसी मुक़द्दस तस्कीन महसूस करता है जो अपने वजूद के लिए जज्बा शहादत की मरहूम मिन्नत होती है। जवानी एक सुहाना ख्वाब है जिसकी हलावत किताबों के लतीफ़ और मख्फी मसाइल को अपना असीर बनाकर एक कर्बनाक बेदारी से बदल देती है। हसन का इदराक हमारी रूहें ही कर सकती हैं, हम इसे लफ्ज़ों में बयान करने पर कादिर नहीं हैं। हसन की भी एक ज़बान होती है, ये ज़बान लफ्ज़ों और होंठों की मोहताज नहीं होती।
हकीकी हसन रूहानी हम आहंगी से वजूद में आता है। इस रूहानी हम आहंगी का दूसरा नाम मोहब्बत है। खुदा तुम्हारे अल्फाज नहीं सुनता सवा इस वक्त के जब वो खुद उन अल्फाज को तुम्हारे लबों से अदा करता है। खुदा के लिए मुझे इस अक्ल व दानिश से दूर रखो जिसमें कोई तड़प नहीं और जो कभी रोती नहीं। खुलूस हमारे तमाम जज्बात व एहसासात का जौहर है और हमारे अमाल व किरदार को अज़मत और वक़ार बख्शता है। खूबसूरती ज़रूरत नहीं बल्कि कैफ व जज्ब आवर है। वो ना तो ऐसा दहन है जो तिश्ना हो और ना ऐसा खाली हाथ जो भीख के लिए फैला है। दरिया अपने समंदर की तरफ जाने वाले रास्ते पर हमेशा बहता चला जाता है। इसे इस बात की मुतलक परवाह नहीं होती कि पेंचुकी का पहिया टूटता है या सलामत रहता। दुआ तो दिल का गीत होता है जो हुजूम के शोर व गौगा के बावजूद आसमानों तक जा पहुंचता है। दोस्ती का मुद्दा इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी रूह में ज्यादा गहराई पैदा हो। रूह उन अशिया की दीद पर भी कादिर है जो बसारत से मावरा होती है। रूह एक मुकद्दस और नीलगो भड़कता हुआ शोला है जो घास को चट कर जाता है, तूफानों के साथ बुलंद होता है और देवताओं के चेहरे रोशन और मुनव्वर करता है। जिंदगी आजादी के बगैर रूह से महरूम वजूद की तरह है और आजादी बगैर फिक्र के ऐसी है जैसे रूह गुमराही का शिकार हो। जिंदगी एक जजीरा है, एक ऐसा जजीरा जो दूसरे तमाम जजीरों और बर्रे आज़मों से अलग थलग है। तुम दूसरे जजीरों को खा कितनी ही पैगंबर कश्तियां बुझवाओ, तुम्हारी जात एक जजीरा ही रहेगी। जिंदगी एक कर्ज खा की मसल है, वो हमें इमरोज देती है लेकिन फर्दा को वापस ले लेती है। जिंदगी की कुछ मनाजिल ऐसी भी हैं जो दानिश व हिकमत की रसाई से बुलंद तर है। जिंदगी नाम है एक इरादे का जो शबाब से पैवस्त रहता है, नाम है एक कोशिश का जो पुख्ता उम्री के साथ साथ लगी रहती है, और नाम है एक दानाई का जो बुढ़ापे के पीछे पीछे चलती है। शबाब से बिछड़ा हुआ शख्स अपने शबाब की दुनिया में लूट जाने का आरज़ूमंद होता है। अपने शबाब की दास्तानी यूं कहता है जिस तरह शायर अपनी महबूब नज़मों को मसरूर लहजे में दोहराता है। शमा के गिर्द तवाफ करते हुए जल्द मरने वाला पतंगा तारीकी में जिंदा रहने वाली छे बंदर से कहीं अच्छा है। इबादत जो दिल का तराना है, बेशुमार चीजों में घिरी हुई होने के बावजूद खुदा के कानों तक पहुंचती है। अजाब और अजियत का नाम जहन्नम नहीं बल्कि शराफत, हमदर्दी और इंसानियत के जज्बात से आरी दिल की गहराइयों में छपी हुई सियाही का दूसरा नाम जहन्नम है। अक्ल व दानिश अल्फाज में नहीं बल्कि अल्फाज के मानी में पिन्हा होती है। इल्म बीज की नशोनुमा जरूर करता है लेकिन खुद अपने कोई बीज तुम्हें कभी नहीं देता। औरत का दिल वक्त और जमाने के साथ तब्दील नहीं होता, उसकी मौत हयात अबदी का दूसरा नाम है, फना इस पर हराम है। गार में उगे हुए पौधे से फल की तमन्ना अबस है और कफस में असीर बुलबुल से नशेमन की उम्मीद अहमकाना तसव्वुर है। गम खुदा का साया है जो गुनहगार दिलों के आसपास अपना मस्कन नहीं बनाता। गम वो बादल है जो दुनिया में मरिफत और सच्चाई का मीन बरसाता है।
गमज़दा लोग सोगवार रहकर ही नशात व सरवर हासिल किया करते हैं और उशाक ख्वाबों की दुनिया में रहकर दिलो जिगर के लिए इत्मीनान और तसल्ली हासिल करते हैं। फिर एक कदम है जो जाहिर से बातिन और अबदियत की तरफ उठाया जाता है। कायनात में मोहब्बत आज़ादी की मजहर है। यह हमारी रूहों को इस मिराज पर ले जाती है कि इंसानी कवानीन और मुज़ाहिर फितरत इसका रास्ता नहीं बदल सकते। किसी चीज पर एतिकाद रखना अच्छी बात है, लेकिन इस एतिकाद को अमली जामा पहनाना कुव्वतों की सही आजमाइश है। कम बख्तों और कम नसीबों के लिए मौत इज्जत और राहत से कम नहीं। खिले हाथों देने वालों के लिए लेने वाले की तलाश ऐसी मसरत है जो बख्शिश की मसरत से भी ज्यादा है। गुजरा हुआ कल सिर्फ आज की याद है और आने वाला कल आज का ख्वाब है। गहरा आदमी गहराइयों में उतरता चला जाता है और बुलंद ख्याल बुलंदियों पर चढ़ता चला जाता है। लोग बातें इस वक्त करते हैं जब ख्यालात में सुकून बाकी नहीं रहता। मायूसी हमारी बसारत और समात को मफलूज कर देती है। मोहब्बत सनोबर की शाखों की तरह दिल से शाख दर शाख फूटती है। एक शाख के टूट जाने से बाकी शाखें मगमूम जरूर होती हैं, लेकिन अपना वजूद नहीं खो देती। मोहब्बत अपने अलावा और कुछ भी नहीं देती और जो कुछ वो लेती है अपने ही से लेती है। मोहब्बत एक इरादा है जो हमारे हाल को माजी और मुस्तकबिल से हम आहंग करता है।